Hello everyone, I am Satyendra Kumar Mishra and in this video I am going to discuss about the torque transmitting capacity of a clutch. As you all know that a clutch is a mechanical device which is used to connect or disconnect the source of power from the other source from the other for the remaining part of the transmission system at the will of the operator. So in this video, I will discuss about the derivation part of the torque transmitting capacity of a clutch. Or you can say that if we know the torque transmitting capacity of the clutch, then we can easily calculate the how much power our clutch will transfer in the engaging case. Okay, so let's derive the torque transmitting capacity of a clutch. Okay, so here we have a friction disk. Just see this. This is our frictional disk. This one is our frictional disk, and here the small d is the inside diameter of this disk, and capital D is the outside diameter of the disk. And we have assumed, or we have taken a circular ring element at a radius of r of thickness dr. Actually, we have to derive here what is the torque transmitted by the clutch, how much torque it will transmit by the clutch. And here the torque is purely transmitted by the फ्रिक्शनल फोर्स. जो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके थ्रू हमारा जो टॉर्क होगा वो ट्रांसमिट होगा. तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये टॉर्क जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, उस चीज को डिराइव करना है. एज यू ऑल नो दैट द इन clutch cases we have used two theories. One is known as the uniform pressure theories and another one is known as the uniform wear theory. In uniform pressure theory case, our pressure is remains constant, means pressure is uniformly distributed throughout the friction lining. जो हमारा friction lining होगा उसमें जो pressure होगा वो throughout constant होगा. But in case of uniform wear theory cases, our condition is pressure multiplied by radius r is equal to constant. So in this figure we can see that we have one frictional disk. This is our frictional disk, and here the friction lining is done. ठीक है, फ्रिक्शन लाइनिंग इसमें किया हुआ है विद द मटेरियल नोन एज एस्बेस्टस. ठीक है, दिस इज द प्रेशर P, द ऑपरेटिंग फोर्स. प्रेशर जो फोर्स P है, इट इज नथिंग बट आवर टोटल ऑपरेटिंग फोर्स, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एंगेजिंग द clutch, and this small p is the intensity of pressure at a radius r. Okay, intensity of pressure at a radius r, and small d is the inner diameter. This small d is the inner diameter, and this capital D is the outer diameter of the friction disk. Basically, this is our friction disk. And for the derivation part, we have used the concept, if we can derive for a ring element at a radius r of thickness dr, then if we integrate this for the whole area, then we can easily find out the torque transmitting capacity of this whole frictional disk. So we just use this, and this is the side view of this frictional disk. Okay, these are the frictional lining, and the frictional lining is basically for the asbestos material. Okay, and this condition is shown in the case of the uniform pressure theories. ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कांस्टेंट होगा. प्रेशर P is equal to constant in case of uniform pressure theory. बट इन यूनिफॉर्म वियर कंडीशन, फॉर द यूनिफॉर्म वियर कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो कंडीशन होगा या जो हमारे पास प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो समथिंग लाइक, सपोज दिस इज द फ्रिक्शन लाइनिंग, ये हमारे पास फ्रिक्शन लाइनिंग है, तो क्लोज टू द रेडियस, मतलब जितना इनसाइड होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा और आउटसाइड में प्रेशर की वैल्यूज कम होगी. एंड दिस कर्व विल फॉलो द प्रेशर इनटू आर इक्वल टू कांस्टेंट. इसी तरीके से अगर आप नीचे के साइड में जाएगा तो अगेन प्रेशर जो होगा वो इनर रेडियस में सबसे मैक्स होगा, और जैसे जैसे आप इससे डिस्टेंस में जाएंगे प्रेशर आउटर साइड में जो होगा वो हमारे लिए मिनिमम हो जाएगा. प्रेशर जो होगा आउटसाइड में
वो हमारे लिए मिनिमम हो जाएगा एंड इट विल जनरली फॉलोज प्रेशर इनटू आर इक्वल टू कांस्टेंट एंड बेसिकली यू कम इन यूनिफॉर्म वियर कंडीशन you see that pressure into r का product constant है इसका मतलब है pressure is maximum when radius is minimum and this is our radius, this is nothing but our d by 2 and this is nothing but our capital D by 2. This is the side view, just we have taken the side view of this one and this is the case of the uniform wear theory. It is nothing but our uniform wear theory का केस दिया हुआ है जहां प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इट विल फॉलो दिस कर्व P into R equal to constant. Okay, so just derive the formula. So these are the notations we are using for our derivation purpose. Okay, just see this. We have a friction disk of single plate clutch. We have a friction disk of a single plate clutch in the given figure. Here the capital D is the outer diameter of friction disk. Small d is the inner diameter of the friction disk. Okay, this small p, don't be confused about this small p and capital P. This capital P is the operating pressure, take operating force which is required to engage the clutch, and this small p is nothing but the intensity of pressure at a radius r. This small p is the intensity of pressure at a radius r, and this is we have to derive this expression, how much torque it will transmit. Okay, this we are going to derive this expression, how much torque it will transmit, our clutch will transmit. Okay, so just okay, for the calculation of the torque transmitting capacity, we have simply considered an elemental ring. We have simply considered here an elemental ring of radius r and at a radial thickness of dr. Just see this. Here is our frictional disk. यही था हमारे पास फ्रिक्शनल डिस्क. दिस इज द इनर रेडियस था और ये हमारे पास आउटर रेडियस था. हमने यहाँ पर एक एलिमेंटल रिंग को कंसीडर किया है और अगर हम इसका टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर ले एंड देन वी इफ वी गो फॉर द इंटीग्रेशन फॉर द होल सरफेस, देन इट विल गिव्स अस द टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय आवर क्लच. हमारा क्लच कितने टॉर्क को ट्रांसमिट करेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, so just see this. We have considered an elemental ring of radius r with a radial thickness of dr. Okay, जब इसका radius r है, thickness dr है, तो we can write that elemental area is nothing but 2 pi r into dr. और अगर हम elemental area consider कर लेते हैं तो हम easily से इसका axial force calculate कर लेंगे. Axial force कितना होगा? If we know the pressure small p, अगर pressure को इस area से multiply करेंगे, it will gives us the एक्सियल फोर्स. हमारे पास जो एक्सियल फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड ये हमारे पास दे पाएगा. ठीक है, उस एलिमेंटल एरिया में हमारे पास जो एक्सियल फोर्स लग रहा है वो हमारे पास इतना आएगा. और अगर हमारे पास एलिमेंटल एक्सियल फोर्स निकल गया तो हम फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं या टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज नथिंग बट जो एक्सियल फोर्स आ रहा है जस्ट मल्टीप्लाइड बाय दिस न्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्सियल फोर्स, इट विल गिव्स अस द फ्रिक्शनल फोर्स. So just see this, the frictional force is nothing but nu multiplied by this area. इस एरिया को जो एक्सियल फोर्स का जो एक्सियल फोर्स आया था इस फोर्स को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया with this new coefficient of friction. So we can get this elemental frictional force. After calculating the elemental frictional force, we have to find out the elemental torque. टॉर्क कितना होगा? तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज नथिंग बट द आर. तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? वी हैव कैलकुलेटेड द एलिमेंटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, एक्सियल फोर्स कितना होगा और फ्रिक्शनल टॉर्क कितना होगा. इस एलिमेंटल रिंग में वो कैलकुलेशन हम लोगों ने यहां पर कर लिया. अच्छा ठीक है, यहां पर कैलकुलेट करने के बाद आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, इफ यू वांट टू नो द टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क कितना होगा, ठीक है, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क हमारे पास कितना होगा या टोटल एक्सियल फोर्स ही अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय सिंपली इंटीग्रेटिंग दिस एलिमेंटल एरिया विद द लिमिट d by 2 टू कैपिटल D by 2. इस लिमिट के अंदर में अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वी कैन इजीली फाइंड आउट द टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क हमारे पास कितना होगा.
और टोटल एक्सेल फोर्स हमारे पास कितना होगा, अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वी कैन इजिली फाइंड आउट, हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी दिस. After calculating the axial force, elemental axial force and elemental frictional torque, if we integrate this expression in the limit d by 2 to capital D by 2, we can find out the total axial force जो हमारे पास आ रहा था वो कितना होगा, और टॉर्क की वैल्यू जो टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द क्लच होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर. But for calculating these two values, we have to integrate over this one. So यहाँ पर दो थ्योरी प्रपोज किया जाता है. One is known as the uniform pressure theory and another one is known as the uniform wear theory. Uniform pressure theory क्या बोलता है, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होगा, प्रेशर जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट द फ्रिक्शन लाइनिंग में. अब बेसिकली जब हमारे पास क्लच न्यू होता है तब हम इस थ्योरीज का यूज करते हैं. इन यूनिफॉर्म वियर कंडीशन कब यूज करते हैं, जब हमारा क्लच जो होता है वो वॉर्न आउट हो जाता है, इन सर्विस कंडीशन में रहता है, तो उस केस में हम यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का यूज करते हैं और उसके लिए हमारे पास कंडीशन आता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इन दोनों थ्योरीज के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि हमारा टोटल फोर्स कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग फोर्स कितना आ रहा है और टोटल कितना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है इन दोनों ही केसेस में, उसको हम कैलकुलेट करते हैं. ओके, लेट्स सी दिस. ओके, लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी केस. ठीक है, दिस इज आवर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी केस. यहां पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, इन केस ऑफ न्यू क्लचेस, जब हम न्यू क्लचेस यूज करते हैं employing a number of spring, the pressure remains constant over the entire surface area of the friction disk. ठीक है, जितना भी सरफेस एरिया होगा सारे एरिया में जो प्रेशर होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा. तो प्रेशर ये हमारे पास कांस्टेंट है. तो अभी हमने निकाला था ऑपरेटिंग फोर्स के लिए ये एक्सप्रेशन निकाला था. जब यहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से हम बाहर नहीं ले जाएंगे और सिंपली इसको इंटीग्रेट कीजिए, आरडीआर को इंटीग्रेट कीजिए. आरडीआर का इंटीग्रेशन कितना होगा, आर स्क्वायर बाई 2. ठीक है, तो यहां से हम इंटीग्रेट किए तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द ऑपरेटिंग फोर्स हमारे पास कितना आएगा. उसी तरीके से टॉर्क ट्रांसमिशन कैलकुलेशन हम कर रहे थे, तो अगेन यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है तो जस्ट इसको इस इंटीग्रेशन साइन से हम क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ टॉर्क ट्रांसमिशन. वो हमारे पास कुछ इतना आएगा. देखिए हमने यहां पर क्या किया, हमने अभी जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था ऑपरेटिंग फोर्स का और जो टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी का फॉर द एलिमेंटल रिंग, आपने एलिमेंटल रिंग को कंसीडर किया था और उसके बेसिस में हमने इस पी का एक्सप्रेशन निकाला था और इस टॉर्क ट्रांसमिशन का एक्सप्रेशन निकाला था. फिर मैंने बोला कि इनका इवैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हम लोग यूज करते हैं. वन इज यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, अनदर वन इज यूनिफॉर्म वियर थ्योरीज. ये दो थ्योरीज को यूज करते हैं. इन यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी कंडीशन हमारे पास जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है और यूनिफॉर्म वियर कंडीशन में हमारे पास ये जो प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट होता है. तो अगर हम पहला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरीज को यूज किए तो जस्ट जो एक्सप्रेशन था, जस्ट सी दिस, हमारे पास जो एक्सप्रेशन था कुछ यही था. प्रेशर कांस्टेंट है, इस प्रेशर को बाहर ले जाइए, जस्ट इसको इंटीग्रेट कीजिए, यू विल गेट दिस. और अगर टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी निकाल रहे हैं तो टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी के लिए इस प्रेशर को बाहर ले जाइए, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन कीजिए और जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इतना आएगा. तो ये जो आया ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आया. इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे. इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम यूज करते हैं तो वी कैन राइट इट डाउन. जो हमारा जो टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी होगा उसको हम कुछ इतना लिख सकते हैं. जो टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी होगा it will be nothing but this one, nu into कैपिटल P. यहां पर कैपिटल P आएगा by 3 multiplied by this expression and it is nothing but this one mt.
जो हम लोग यूज करते थे, न्यू इनटू प्रेशर फोर्स P, दिस वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस R, यही होता था। और यहाँ पर जो R इफेक्टिव है वो कुछ नहीं है बल्कि ये वैल्यूज है, यहां से यहां तक का जो वैल्यूज है वही हमारे पास R इफेक्टिव है। जस्ट सी दिस वन इज द P, just see this one is R effective in the case of uniform pressure theories। तो हमने दो एक्सप्रेशन डिराइव किया, एक हमारे पास टोटल फोर्स कितना आएगा और कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है हमारा क्लच इन केस ऑफ यूपीटी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी कंडीशन। और मैं आपको बताता हूं कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी कंडीशन जब क्लच हमारा न्यू होता है उस केस में हम लोग यूज करते हैं। In the case of a new clutch, we generally use for the uniform pressure theory condition, means उस समय जो प्रेशर होगा थ्रू आउट द फ्रिक्शन डिस्क में हमारे पास कांस्टेंट होगा। ओके, तो दिस विल बी डिराइव्ड फॉर द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल प्लेट क्लच। एक सिंगल प्लेट क्लच के लिए हम लोग यूज किए हैं इन यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी कंडीशन में, इन यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी कंडीशन में। अच्छा, अगर इन केस ऑफ मल्टीप्लेट क्लच अगर आ जाता है तो ये जो इक्वेशन है सिंपली इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज से, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। फॉर द मल्टीप्लेट क्लच वी जस्ट मल्टीप्लाइड दिस एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड फॉर द सिंगल प्लेट क्लच इन यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी कंडीशन। ओके, लेट्स कंसीडर केस 2। अब हम आएंगे केस 2 पे जो कि है हमारा यूनिफॉर्म वियर कंडीशन। ओके, यूनिफॉर्म वियर कंडीशन में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है, फॉर यूनिफॉर्म वियर कंडीशन में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है P इंटू R इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट इज एज्यूम दैट द वियर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस एरिया ऑफ द फ्रिक्शन डिस्क। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म वियर थ्योरीज है तो वियर जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा over the entire surface area of the friction disk. This assumption is used for the worn out clutch। यहां पर कंसीडर कीजिए अगर हमारा क्लच सर्विस कंडीशन में है, worn out हो चुका है, उस केस में हम यूनिफॉर्म वियर थ्योरी कंडीशन को यूज करेंगे। और अगर कुछ भी चीज मेंशन नहीं है इन प्रॉब्लम में कि टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कीजिए किस केस में, यूनिफॉर्म प्रेशर केस में या यूनिफॉर्म वियर केस में, तो यू जस्ट यूज बाय डिफॉल्ट आपको इसी को यूज करना पड़ेगा टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने में। ओके, इन यूनिफॉर्म वियर कंडीशन जैसा मैंने बताया था प्रेशर इंटू आर का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब प्रेशर मैक्सिमम कहां होगा, इनर रेडियस में, और मिनिमम कहां होगा, एट द आउटर पेरिफेरी में। जो अभी मैंने डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताया था कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी हमारा जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दिस आर द फ्रिक्शन लाइनिंग था, साइड व्यू में मैं शो कर रहा हूं, जो हमारा फ्रिक्शन लाइनिंग था, जो प्रेशर का एक्सप्रेशन होगा, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इतना होगा, यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस दूर जाते जा रहे हैं, आउटर पेरिफेरी में जा रहे हैं, तो ये वैल्यू कम होगा। इसी तरह नीचे वाले में इनर रेडियस में प्रेशर मैक्सिमम होगा और आउटर पेरिफेरी में प्रेशर की वैल्यूज मिनिमम होगी, मतलब P इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसको फॉलो कर रहा है। ओके, देन for the derivation point of view, for the derivational point of view, let us suppose that the maximum pressure at inner radius, the maximum pressure at inner radius is denoted by PA, and it is nothing but it is the permissible pressure. Since P into R is equal to constant, तो हमने माना है क्या कि at a inner radius पर, जो हमारे पास inner है, inner diameter पर हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यूज है वो समथिंग P into A है, तो P इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब हम कह सकते हैं P इंटू आर अपॉन डी बाई 2 का वैल्यू जो आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। तो जस्ट पुट इनटू दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में अगर हम पुट किए तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले जा सकते हैं, बाहर ले गए, जो बचा डी आर, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, और इस केस में यूनिफॉर्म वियर केस में हमारे पास जो ऑपरेटिंग फोर्स आ रहा है वो कुछ इतना आ रहा है। ओके, लेट्स कैलकुलेट द torque transmitting capacity in case of uniform wear case, uniform wear case में। Okay, here again for calculation of MT जो हमने पहला एक्सप्रेशन यूज किया था उसी को यहाँ पर यूज किया है, और जस्ट ये प्रोडक्ट जो होगा ये कांस्टेंट होगा, इसको हमने आउटसाइड किया, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, जस्ट इसका लिमिट पुट किया
D/2 to capital D/2। अगर हम इतना पुट कर देंगे तो इसका एक्सप्रेशन इतना आ जाएगा। और अगर हम इक्वेशन 6 और 7 को यूज करेंगे तो वी कैन राइट इट आवर टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वियर थ्योरीज। ये हमारे पास कुछ इतना आएगा। इट इज नथिंग, अगेन यू कैन सी दैट दिस विल फॉलो दिस न्यू इनटू P, द फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सम रेडियस। और यूनिफॉर्म वियर केस में जो हमारे पास आ रहा है इफेक्टिव वैल्यूज वो इतना आ रहा है, D + D डिवाइडेड बाय 4। तो सी दिस, ओके। So here we can conclude that the uniform pressure theory is applicable only when we have the new clutches, ठीक है, when the friction lining is new। जब हमारे पास न्यू क्लच होता है तो हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी को यूज करते हैं। जब हमारे पास worn out क्लचेस हो जाता है तो हम यूनिफॉर्म वियर थ्योरी को यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द क्लच। ओके, और इन दोनों केस में अभी हमने कैलकुलेट किया जो मैं अभी बता रहा था। जस्ट सी दिस, जो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी होगा, जस्ट रिमेंबर दिस टू फॉर्मूलाज एंड यू कैन इजीली सॉल्व द गेट प्रॉब्लम्स। इन गेट दे विल आस्क डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। सो यहाँ पर जो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरीज में होगा वो हमारे पास इतना होगा। जस्ट सी दिस, यहाँ पर जो आर इफेक्टिव होगा वो हमारे पास इतना होगा, और इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वियर थ्योरीज में हमारे पास कुछ इतना होगा। और जो पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी होता है वो हमारे पास यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरीज केस में, जब हमारे पास क्लच न्यू होता है तो उसकी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से, जो आप टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रॉम दिस डेरिवेशन एंड the total discussion, we can conclude following things. We can easily conclude the following things. The first conclusion is uniform pressure theory is applicable only when the friction lining is new। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब हमारे पास फ्रिक्शन लाइनिंग न्यू होगा, क्लच हमारा न्यू होगा, तब यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज अप्लीकेबल होगा ओनली। ओके, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इज अप्लीकेबल व्हेन फ्रिक्शन लाइनिंग गेट्स worn out। जब फ्रिक्शन लाइनिंग worn out हो जाएंगे तब हम यूनिफॉर्म वियर थ्योरीज का यूज करते हैं। टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ न्यू क्लच इज स्लाइटली मोर देन द worn out क्लच। ऑब्वियसली जब हमारे पास न्यू क्लच होगा तो उसकी टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू worn out क्लच में। A major portion of life of friction lining comes under the uniform wear criteria। ऑब्वियस बात है, जो उसका जो मैक्सिमम टाइम रहेगा वो worn out होता है तो वो इस केस में आएगा, यूनिफॉर्म वियर क्राइटेरिया में आएगा। एंड इट इज मोर लॉजिकल एंड सेफ टू यूज यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इन डिजाइन ऑफ क्लच। जब हम क्लच का डिजाइन करते हैं तो इट इज मोर लॉजिकल एंड सेफ टू यूज यूनिफॉर्म वियर थ्योरीज। ठीक है, तो अप टू दिस मच वी हैव डिराइव्ड in this lecture I have derived the torque transmitting capacity of the clutch in case of uniform wear theories or in case of uniform pressure theories। Just remember these two formulas and you can easily solve the problem of the GATE exam। In GATE they generally ask the questions directly formula putting from this topic। Okay, thank you।